This Today conference topic will is now be recorded. VPC pairing. So how to configure VPC pairing? What is VPC pairing? I already explained you. The VPC provides a communication between two different VPCs. The VPC pairing provide connection between two DI different VPC. Maybe its work in same region, comma different region. Same region, comma different region. As well as same account, like the one user account like Amit or second user like a Chandan. The same account or different account. Now the concept is, guys, suppose karo, this is my account. I'm logged in with my account. Got it? This is my look like I'm logged in with AWS account. And this is my account ID, like this is my account ID. Got it? So I'm just logged in with my account. Now in this account, you can note that the multiple reasons is available. Yes or no? Yes. There's an n number of reason is available. Suppose karo I'm using a two reason. Like this is look like a Mumbai region. And look like I'm using a Singapore. These are the two reasons is available. After that, I'm create inside the Mumbai region, I'm create a two VPC. I'm create two VPC. And each and every VPC I'm create two subnets. Choice is your कि आप multi subnets create कर सकते हो. And create a two root table. And attach a gateway for every VPC. It's called IG. रिमेंबर कि मैंने लास्ट क्लास में ये सारी चीजें आपको बताई. LAN root tables and like sales SUV subnet. WAN RT look like a HR-SUV subnet. Look like a VPC1 use IP 10.0.0.0/24. And this is called IG, Internet Gateway. Same as this is the Internet Gateway. This is look like a WAN RT.
It is a LAN-RT. Now the department is test-SUB subnet and like a developer. Now it's a VPC2. The use IP is look like a 20.0.0.0/24. Same as this is VPC3, and VPC3 is available in another location. VPC3 is work in look like a Singapore location. Use IP /24. Now this is like account department and like your account subnet or like the HOD, head of the department. Now this is a WAN. This is the LAN-RT. Now it's the IG. IG choice is where you connect with both tables, or either you connect a multi, or either you connect a single. Choice is yours. But if I connect with both root tables, that means both are allowed for the output. Clear the concept, guys? These are the three VPCs. The two VPCs available in a Mumbai location, and one is available in Singapore location. Got it the point? So guys, is it clear? Anyone, any Yes, question related to this? So now I'm create a 3 VPC TMS, and after enable a pairing. Clear, guys? After enable pairing. So I'm just simply go login with account Amazon. So guys, VPC एक मैंने बनाया हुआ है. I'm delete this VPC and create again. तो मैं कल वाले VPC को delete ही कर देता हूँ. Create a new. तो 3 times step repeat होने वाली है आपकी VPC create होने की. और यू नो कि VPC के लिए सबनेटिंग कैसे करनी है, यू नो वेरी वेल. तो मैं वही 26 पर ही और 25 पे डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ. क्योंकि जितने शॉर्ट में जितने इजी वे से मैंने आपको सबनेटिंग बनाया बताई है ना, कोई भी आपको नहीं बताएगा. ऑलवेज कि जब आप क्लास वाइज सबनेटिंग पढ़ते हैं तो उसे पढ़ने के टाइम होती है उससे आप इंटरव्यू क्लियर नहीं. लेकिन जो तरीका मैंने बताया है ना, आपका चाहे किसी भी क्लास का हो, हाँ वो आपसे पूछता है रेंज क्या है, देन आप रेंज पूछ सकते हो. मशीन इज रनिंग, कल से मशीन चल रही है. Now just please in launch instance. Sorry, before launch instance, I'm create a VPC. So right now I'm available in Mumbai location. So now I'm just created two VPCs in a Mumbai location, VPC1 and VPC2. So, जोन वाइज नहीं होता VPC. रीजन के अंदर क्रिएट होता है, रीजन के अंदर जाके जोन सेलेक्ट करना. So guys, this is the my VPC. It is the default VPC. I'm just delete this VPC. और अगर आपने VPC बनाया है तो VPC के अंदर जो भी चीजें बनाई है वो भी आपकी अपने आप ही डिलीट हो जाएगी. But remember, if your VPC is connected to any resource, either a peering, either a net gateway, or either any systems or load balancer, it's not delete. यानी VPC आपका तभी डिलीट होगा जब वो यूज में नहीं होगा. अगर वो कहीं भी यूज हो रहा है तो वो आपका डिलीट नहीं होगा. So now I'm just create a VPC and give the VPC name is VPC1 and its use IP is 10.0.0.0/24. Now the create VPC. After that, I'm just create a subnet for VPC1, create subnet, select a VPC, and now I'm just give the name is VPC1-HR
HR department work in VPC1 in zone A. Use IP 10.0.0.0/26. That means 64 IPs I'm allowed. Now the another is VPC1-SALS seals. The subnet is available. Now it's working zone B and it use IP is 10.0.0.64/26. And now click on create. After that, I'll create a root table. To create root table and VPC1. तो गाइस अगर मेरे को दोनों को ही पब्लिक एक्सेस देना है, अगर मेरे को दोनों रूट टेबल को पब्लिक एक्सेस देना है तो मैं एक ही रूट टेबल पर, वी डोंट नीड फॉर द अनदर. ठीक है, तो आपके ऊपर आप किस स्टेप्स का कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं. बट create root table and now I'm just click on VPC1-WAN-RT root table. तो नाम से कोई नहीं है गाइस, नाम देखिए ऑप्शनल लिखा आ रहा है. ऑप्शनल का मतलब है आप डालिए नाम मत डालिए, चॉइस इज योर. VPC2 and then create root table and actions, subnet association and now I'm select a boss. और अगर आप चाहते हो कि नहीं जिसको पब्लिक एक्सेस ना मिले तो आप एक और रूट टेबल बनाइए और उसके अंदर जाके ऐड. Clear guys, the concept of the root table. I'm just click on internet gateway. Create internet gateway is VPC1-ID. और गाइस मेरी अदर VPCs की वीडियोस भी अवेलेबल हैं अदर बैचेस की, तो आप सारी वीडियोस देखिए. आपको प्रैक्टिकल भी अलग है बट एक्सप्लेनेशन अलग है. तो आप मेरी 3 और 4 वीडियोस देखेंगे हर बैच की, तो डेफिनेटली कहता हूँ आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. नाउ अटैच VPC विद internet gateway attached with VPC. Now I'm just go to the root table because as per the diagram कि मेरे को दोनों सबनेट को पब्लिक एक्सेस देना है. That's why I'm adding both in a single table. और अगर मुझे जिसको नहीं देना उसके लिए मैं एक अलग से रूट टेबल बना, बिकॉज कि मैं जिस भी टेबल के साथ गेटवे अटैच करूंगा उसके अंदर जितने भी सबनेट्स होंगे वो सब अलाउड हो जाएंगे पब्लिक. तो नाउ क्लिक ऑन VPC1 देन रूट्स, एडिट रूट. और वैन पे जाने के लिए कभी भी इंटरनेट एक्सेस के लिए वी आर यूजिंग अ डिफॉल्ट राउटिंग. और डिफॉल्ट राउटिंग का जो आईपी है वो है 00/0. नाउ सिलेक्ट द इंटरनेट गेट, सेव चेंज. क्लियर एवरीवन. Now again I'm repeat, I'm create again one more VPC, your VPC. Create VPC, give the VPC name is VPC2. IP is use IP 20.0.0.0/24. And now create. Inside this VPC I'm created 2 subnet for VPC2. Okay, then create VPC, select a VPC2 subnet like I'm just VPC2-test. Support test team work in this VPC. And now zone A is working and CID is 20.0.0.0/26. Now at is developer team is also work in this subnet and IP is 20.0.0.64/26. Now create. After that I'm just create a 2 root tables. So मैं नहीं चाहता डेवलपर्स को WAN access, तो आप क्या करेंगे, you create a 2 root tables, one is LAN and other is WAN. And जिसको भी आप WAN access देना चाहते हैं उसको WAN table में ऐड करिए और attach internet gateway. Then now click on name like VPC2-WAN-RT. तो गाइस देखिए जब आप नेमिंग करते हो ना तो स्टेप्स की नेमिंग करना कि जिसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर. Now create root tables and actions and edit subnet association और select a WAN. तो मैं टेस्ट को WAN एक्सेस देना चाहता हूँ, so I'm add a test in a WAN root table. Now I'm just create again one more root table like VPC2-LAN-RT and select a VPC2 and now select subnet association and now developer को I'm adding a LAN access.
Now guys, you can see in a root table, the all root tables is available. VPC1 रूट टेबल, VPC2 की मैंने दो रूट टेबल्स बनाई हैं, बट VPC1 की एक ही बनाई थी क्योंकि मैं दोनों सबनेट्स को पब्लिक एक्सेस। द चॉइस इज योर कि आप अपने नेटवर्क को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो आपको सिलेक्ट करना है। Now I'm available in like WAN, so I'm just create a one more internet gateway and create internet gateway with the name of VPC2-IG. Internet gateway, create internet gateway. Now the attach with VPC. Then go to the root table, go to the VPC2 WAN root table. Then routes, edit routes, add routes, and 000/0, and now select the internet gateway and save change. Got it, guys? Now I'm just create two virtual machines. EC2 -user, right click and open a new tab. In a Mumbai location, guys, I'm available. And launch instance. Now create a one machine in a HR, that is VPC1. So I'm select Windows Server, select G2 Micro, next select VPC1, and now I'm select the HR machine, or now enable a public IP. I'm not enable any other machine. Now next, to public IP is the publicly access हो ही जाएगा. Now click and VPC1-HR1. Next, and allowed a security group. So now I'm allowed RDP protocols, review and launch, and select the keep here. I'm just create a get Windows and now launch it. Same as I'm create a one more machine in another subnet. Launch instance over 12. Select a VPC2, and now at this time select a test. I'm not enable a public IP. If you are in a public IP नहीं होगा तो आपकी machine access नहीं होगी, तो मेरे को करनी भी नहीं. I'm not peering के थ्रू हम अपने public IP की कॉस्ट को भी कम करते हैं. We don't require for the public IP. Next, अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो कर भी सकते हो. Now is it VPC2-TEST test1. Next, security group, then next review and launch, and now select the Windows. So guys, I'm just create a two machines. Now the same setup I'm creating a Singapore location. I'm create a VPC3 in a Singapore location and create a one more machine. So now I'm move for another reason. I'm just go to Mumbai, and Mumbai to I'm move for another reason. Click on open tab and new tab. And now I'm just click on a VPC, and now I'm just go to the Mumbai region and right click on a Singapore. So now guys, this is my VPC console dashboard. Now that I'm available in Singapore location. Inside the Singapore location, click on view a VPC. And now the same as you can see, the default VPC is also available in this region. Now just click on create VPC. The same steps is VPC3. AWS cloud is very easy. Now use IP like a 30.0.0.0/24. Now the create. After that, click on a subnet and then create two subnets. So I'm create only one subnet here. Okay. So choice is your, like I'm just create a like a HOD. I'm create a one subnet HOD in John A, and give the IP is look like a 30.0.0.0/24. यानी कि मैंने 256 IP तो टोटल लिए थे, सारे के सारे IP एक ही डिपार्टमेंट को दे. Got it?
and now create subnet. After that, I'm just go to the root table, create root table, and give the VPC3-WAN and select a VPC3, and now the create a root table, and then go to the action, edit subnet association, select the HOD subnet, and see. Then create an internet gateway. Create internet gateway. Give the VPC name is VPC3-IG. Now the create an internet gateway attached to VPC of this internet gateway. Select a VPC3 and attach to internet. So guys, internet gateway get kara, then I'm attached with VPC3. Then I'm just also attach the internet gateway with my root table. So I'm just go to the root table and select a VPC3 WAN, and then click on roots and then edit roots. Add root 000 and now select the internet gateway and save it. Now just create a EC2 instance in a Singapore location, guys. I'm available. Now is the same option is available. Is it click on instances inside the EC2, launch instance, select the server, select T2 micro, next, select the VPC3 HOD. I'm not enable a public IP. Next, give the name is SING Singapore machine. Security group only allowed the RDP protocols because I'm just check the connectivity, launch instance, and I'm create a new key pair is like a SINGAPORE-Windows. And now download this key pair and the launch instance. Now guys, the step is this कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कनेक्टिविटी चेक करने वाला हूँ अपनी तीनों मशीन के बीच कि क्या मेरे तीनों मशीन के बीच में कनेक्टिविटी है. So now I'm just go to the Mumbai VPC. There EC2 instance. यहाँ पे देखिएगा दो मशीन मेरी है. मैं यहाँ पे एक और मशीन क्रिएट कर रहा हूँ VPC1 के अंदर ही सेल्स. So now the launch instance server 2012 R2. Next, and select a VPC1 and now sales. I'm not enable a public IP. तो guys पूरे सिनेरियो में मैंने सिर्फ पब्लिक आईपी एक ही मशीन पे ऐड ऑन करा है, VPC1 की HR मशीन. The concept is this, now I'm just create a one virtual machine in this subnet. Now I'm just create a one virtual machine in this subnet, no public IP. Then I'm create a one virtual machine of this subnet, and I'm just create a one virtual machine on this subnet. Guys, do green, red, and blue colors है. If not use any public IP. Public IP नहीं है तो ये मशीन है वैसे तो WAN में एक्सेस ही नहीं हो. Got it? So now I'm just access HR machine because only the HR machine use the public IP. So मुझे अपनी public IP cost I'm just select a VPC1 HR. You can see the public IP is available. Then click on connect or also gateway is attached and RDP protocol भी allowed हो रखा है in a security group. Get password, browse, and select get Windows spam. Now the decrypt, copy, download the remote desktop connection. So you can see this machine is accessed easily. But now remember there's no any public access is available. There's no public IP is available in C. तो ये मशीन तो एक्सेस ही नहीं होगी, पब्लिक आईपी नहीं है. Yes or no guys? Everyone? Yes or no? Sir, WAN access नहीं होगा. Yes sir. But guys, this is connected with the same VPC. So ये मैं इसको इस मशीन के अंदर से आके पब्लिकली एक्सेस प्राइवेट आईपी से एक्सेस कर सकता हूँ. Got it? मैं HR मशीन के अंदर से जाके एक्सेस कर सकता हूँ, यानी कि डायरेक्ट तो एक्सेस नहीं कर सकता ना. So I'm just access HR machine
और HR मशीन के अंदर से आके मैं अगर RDP लूंगा तो मेरी ये वाली भी मशीन एक्सेस होगी. So now what is the IP of this? So I'm just click on instances. Check the IP of VPC1 seal stream. IP is 10.0.0.75 and connect RDP, get password, browse, generate the password, copy, and the IP is 10.0.0.75. So I'm just प्राइवेट IP है, तो मैं इस मशीन के अंदर से जाके कहूंगा क्योंकि दोनों सेम ही VPC से कनेक्टेड है. So now click 10.0.0.075. now enter and you can see that and now guys you can see your machine is there. Got it the point? First point is clear. But now I'm access to another reason machine. So like मेरे पास एक और मशीन है यहाँ पर, अगर आप देखें VPC2 की, the same account VPC2 but it's connected to another VPC. There's a no public IP, private IP is available. Now I'm check if accessible or not. So 20.0.0.39. I'm just click on remote desktop again, right click and open in new and 20.0.0.39. Now click connect, it give you the error. Why? Because it belongs to another VPC and there is no any connection between VPCs. That's why it's not connected with each other. Now I'm enable a pairing between VPCs. I'm enable a pairing between VPC. Then it's connected with each other. Got it the point, guys? Is it clear why enable a pairing Yes. Yes, sir. between 1, 2, VPC 1 और 2 के बीच में पेयरिंग. गाइस उसके बाद भी मैं आपको बता देता हूं कि आप देखिए इस सिनेरियो में टोटल कितने सबनेट्स हैं? 4. आप ये पेयरिंग कनेक्शन जिस भी सबनेट के साथ अटैच करोगे ये पेयरिंग उसी से ही क्या होगी, वो उसी सिस्टम को ही एक्सेस कर पाएगी. यानी कि ये नहीं कि VPC पेयरिंग आपने यहाँ कर दी तो यहाँ पे 50 सबनेट है सबके साथ कम्युनिकेशन हो जाएगा. नो, आपको क्या कर, मैं चाहता हूं कि HR का सबनेट और टेस्ट सबनेट आपस में कम्युनिकेट करें. तो मैं VPC पेयरिंग किस किस रूट टेबल में ऐड करूंगा? आई एम ऐड इन अ कि अगर आप चाहते हो कि HR और टेस्ट कम्युनिकेट करें तो मैं इसको HR की रूट टेबल के अंदर ऐड करूंगा पेयरिंग कनेक्शन को, और एज वेल एज VPC2 की भी उस सबनेट की रूट टेबल में ऐड करूंगा जहां पर मैं कम्युनिकेट करा. क्लियर गाइस? So now how to enable pairing? I'm just go to the VPC of Mumbai region and you can see the option is pairing connection. पेयरिंग कनेक्शन के अंदर भी आपके पास ऑप्शन आएगा कि कौन कनेक्ट होना चाहता है. मैं चाहता हूं कि VPC1 VPC2 के साथ कनेक्ट होना चाहता है. तो VPC1 हो गया रिक्वेस्टर, रिक्वेस्ट कौन कर रहा है? VPC1. और रिसीवर कौन हो गया? VPC2. यानी कि एक्सेप्टर कौन हो गया? VPC2. बट बोथ VPC वर्क इन सेम रीजन. दोनों VPC मेन सेम ही रीजन में है ना, जिसमें एक्सेप्ट की रिक्वेस्ट भी आपकी सेम ही रीजन में आएगी. नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन पेयरिंग कनेक्शन. बहुत इजी है गाइस. क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन, गिव द पेयरिंग with VPC1 -2 VPC2. Got it? This is the name. Select requester VPC1. My account मेरे अकाउंट का ही है, ठीक है. सेम ही रीजन का है, किसी अनदर रीजन का नहीं है. अगर हम अनदर रीजन का करेंगे तो नाम चेंज है रीजन, जो मैं सिंगापुर के साथ जब कनेक्ट करूंगा. और अगर आप दूसरे अकाउंट से करना चाहते हैं, लाइक एक अकाउंट मेरा, एक अकाउंट लाइक मैं कहता हूँ चंदन का है, सो आई एम एक्सचेंज अकाउंट आईडी ऑल्सो. नाउ जस्ट same reason है, so I am not change any reason. The both are work in same reason. Now the VPC2. So acceptor कौन है? Is the VPC2 and now the create pairing connection.
When you create a pairing connection, if you can click on the pairing connection, you can see that it's pending. Now you can select this pairing connection and go to the actions and accept request. After accept request, it come to active mode. Then अब मैं इसको किन दो सबनेट के बीच में communicate कराना चाहता हूँ, HR और sales. So now I'm just go to root table. So first of all I'm go to VPC1 WAN root table जिसके अंदर HR सबनेट है मेरा. Now the click on roots, edit roots और किस add. So यानी कि मेरा जो सेकंड VPC है उसका IP क्या है 20.0.0.0/24 है. मैं इसी नेटवर्क से कनेक्ट होना चाह रहा हूँ, बट किसके थ्रू? VPC पेयरिंग के थ्रू. व्हाट इज द पेयरिंग कनेक्शन नेम? यानी कि इस बार मैं कौन सा गेटवे यूज कर रहा हूँ? पेयरिंग गेटवे यूज कर रहा हूँ दूसरे VPC से कनेक्ट होने के लिए. Got it the point guys? Again repeat कि अगर मुझे जिस भी सबनेट्स के बीच में कम्युनिकेट कराना है, लाइक मुझे रूट VPC2 के टेस्ट वाले सबनेट से कम्युनिकेट कराना है, दैट मींस कि उसको मैंने जो टेस्ट वाले को रखा है WAN रूट टेबल्स के अंदर रखा हुआ है. Got it? तो मैंने WAN रूट टेबल्स के अंदर रखा हुआ है टेस्ट वाले सबनेट्स को. So I'm just go to the VPC2 WAN root tables, then roots, then edit roots, then select ये किसके साथ कनेक्ट होने जाता है? 10 के साथ. बैक है ना? 10 से रिक्वेस्ट 20 पे जाएगी, 20 से 10 पे भी तो आएगी. नाउ सो 10.0.0/24 किसके थ्रू? वाया पेयरिंग कनेक्शन. एंड नाउ सेव इट. Got it the point everyone? Is it clear? And now try. अब मैं अगर यहाँ पे जाके इसको दोबारा से ट्राई करता हूँ, तो इट्स एक्सेसिबल. और ये गाइस आपके VPC2 का पासवर्ड मुझे जनरेट करना पड़ेगा दोबारा से. मैं रीजन VPC2 टेस्ट कनेक्ट और गाइस दिस इज अ हब एंड स्पोकन नेटवर्क भी इसको बोला जाता है, क्योंकि एक ही मशीन को मैं सिंगल मशीन के अंदर कर स्पोकन. एक हब मशीन बना दी, उसके थ्रू मैं सारी मशीनें एक्सेस कर. गॉट इट? और वो मेरे लैंड के थ्रू हो रही है, यानी कि अगर वो आईपी किसी को पता भी लग जाए 10.0.0/75 तो एक्सेस ही नहीं कर पाओगे. क्लियर गाइस? तो नाउ गाइस देखिए आपकी ये वाली मशीन भी एक्सेस हो चुकी है. तो बहुत 2 machines are available. This is a 20, this is a 10. Now I'm access a Singapore location. तो सेम सिंगापुर लोकेशन के लिए भी मुझे क्या करनी पड़ेगी? पेयरिंग ही करनी पड़ेगी. सो हाउ टू इनेबल पेयरिंग इन अ डिफरेंट रीजन? आई जस्ट गो टू मुंबई, और आप किसी पे भी जा सकते हो. नाउ क्लिक ऑन पेयरिंग कनेक्शन and create pairing connections. Now the like MUMBAI Mumbai -2 Singapore. Now select VPC1 क्योंकि मेरी HR मशीन VPC1 पे है. तो VPC1 से अनदर रीजन, और अनदर रीजन में जब जाएंगे तो सिलेक्ट अ रीजन. सिंगापुर. नाउ द VPC ID सिंगापुर की मुझे VPC ID चाहिए, IP नहीं चाहिएगा इस बार. क्या चाहिए? VPC ID. तो जस्ट गो टू सिंगापुर VPC. गॉट इट? क्लिक ऑन योर VPC and this is a VPC3 ID. ये देखिए ये रही VPC ID. नाउ कॉपी. और अकाउंट आईडी चाहिए होते तो गाइस यहाँ पर आपकी ये रही अकाउंट आईडी. अगर आप डिफरेंट अकाउंट में चाहते तो अकाउंट आईडी और VPC आईडी दोनों चाहिए. So now click and come to here and now paste and now create pairing connection. One side ID करना है गाइस. देखिए अगेन यहाँ पर ये पेंडिंग आ रहा है.
बिकॉज मैंने आपको बताया था कि अब रिक्वेस्ट VPC1 मुंबई रीजन ने करी है, किसको, सिंगापुर से, तो एक्सेप्ट की रिक्वेस्ट देखिए यहाँ पर आपको एक्सेप्ट की रिक्वेस्ट नहीं मिलेगी, वो कहाँ मिलेगी आपको, सिंगापुर लोकेशन पे मिलेगी. You can go to the Singapore location and then click on pairing connection. So यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली पेयरिंग बन चुकी है. Now select this pairing actions or accept. Now it's active and within a minute. Okay. After that, I'm just go to the EC2 of Singapore machine. Generate the password. Click connect. RDP. IP is 242.30.0.0.242 is the IP. Get password. Browse. And Singapore Windows key is a key pair. Then copy and no need ना, यहाँ करना है. Click on remote desktop connection, right click and new, and IP is 30.0.0.242 and now click on connect. So just a minute guys, थोड़ा सा टाइम लेगा ये कनेक्ट होने में. आप लोगों को पता है भाई, हम सिंगापुर जा रहे हैं, यहीं बैठे बैठे. So it gave the error, no problem. अब बताइए एरर क्यों आ रहा है? पुश अटैच है, क्या नहीं कनेक्ट करा गाइस. मैंने पेयरिंग कनेक्शन बनाया है बट रूट टेबल्स के अंदर ऐड ऑन नहीं किया करा. ऐड ऑन. यस सर. So now I'm just go to pairing connection, go to the Mumbai VPC root table और मेरी जो HR मशीन है वो WAN पर कनेक्टेड है. So VPC1 रूट्स, एडिट रूट्स, एड किस नेटवर्क से कनेक्ट होना है, 30.0.0.0/24. यस और नो, वाया किसके, पेयरिंग कनेक्शन. बट इस बार पेयरिंग कनेक्शन कौन सा है, मुंबई टू सिंगापुर. Save it. Got it the point? Same as I'm go to the Singapore location, root tables, VPC3 WAN root tables, routes, edit routes, add 10.0.0.0/24 VPC1 and now connected via pairing connection. This is a pairing connection ID and now save it. Got it guys? क्यों नहीं हो रहा था? अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, like if I'm just provide a connection between different region, also enable a VPC pairing. So now guys, I'm enable a VPC pairing between this to this. Got it? VPC1 और VPC3 के बीच में पेयरिंग करिए, VPC2 से कोई एक्सेस नहीं होगा. Now the enable pairing. As well as आपको जिस भी उसके साथ ये पेयरिंग को अटैच करना है. So now I'm attached with this pairing connection in a this one and this one. Got it the point? Root table. So not it, यानी कि यहाँ तक आ गए. क्लियर? बट वो रूट टेबल का नाम चेंज है, बट HOD वाले के अंदर ही मैंने. तो नाउ गाइस ट्राई, इट्स वर्किंग. Got it guys? The all machines I am access in a single platform. तो मेरे कितने आईपीस की हो गए और मेरा लैंड कम्युनिकेशन हो रहा है, तो मेरे कितने आईपीस की कॉस्ट बच गई. Clear the guys concept of the VPC pairing? Yes sir. So now continue next topic. Yeah, enough.
चलिए गाइस हम कंटिन्यू करते हैं। रिमेंबर कि मैं अब यहाँ पे एक चीज आपको दिखाता हूँ कि मशीन है, यू नो दिस इज अ माई 100075 वाली मशीन जो है ये मेरे रूट टेबल से कनेक्टेड है, मतलब इंटरनेट गेटवे से कनेक्टेड है। आई एम क्लोज दिस मशीन, नाउ आई एम जस्ट क्लोज दिस वन आल्सो। अब मैं बात करता हूँ रीजन पे। तो गाइस देखिए यहाँ पर ये मेरी जो मशीनें हैं, अभी क्या है कि देखिए इस मशीन पे भी मेरा इंटरनेट चल रहा होगा। google.com, I'm fresh in google.com. Now the internet is working. Got it? And now I'm type the ping command 8.8.8.8 space minus ping. तो गाइस देखिए मेरा रिप्लाई भी आ रहा है, यानी कि मेरी HR वाली मशीन पे मेरा नेटवर्क का रिप्लाई भी आ रहा है, द इंटरनेट इज वर्किंग। और अगर आप देखते हैं मेरी ये वाली मशीन जो प्राइवेट IP से है, इस पर भी अभी इंटरनेट चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि बोथ आर मशीन कनेक्टेड इन अ इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे से अगर आपकी मशीन है दैट मींस द वैन एक्सेस, यानी कि पब्लिक IP नहीं है इस पे, बट फिर भी ये मशीन इंटरनेट गेटवे के थ्रू है, कहीं ना कहीं अनसिक्योर है, क्योंकि इंटरनेट गेटवे के थ्रू आपकी मशीन को कोई भी आउटसाइड एक्सेस कर सकता है। बट मैं चाहता हूं वन वे, मैं चाहता हूं कि मेरा वन वे कम्युनिकेशन हो। कौन सी मशीन है? नाउ ये मैंने अपने लेन सबनेट पे डाली हुई है। सो नाउ देयर इज नो इंटरनेट इज वर्किंग, व्हाट हैपेंड? ओके हाँ, इंटरनेट से नहीं चलेगा बिकॉज ये इंटरनेट गेटवे से तो अटैच है, बट पब्लिक IP नहीं है, दैट्स व्हाई देयर इज नो एनी इंटरनेट वर्किंग। मैं चाहता हूं कि अगर मैंने पब्लिक IP के साथ अटैच कर दिया तो इस मशीन को कोई भी एक्सेस कर लेगा। यस और नो एवरीवन? तो ये तो फिर से वही हो गया ना, अनसिक्योर फॉर्मेट हो गया ना हमारा, कि कोई भी इस मशीन को एक्सेस कर लेगा अगर मैंने क्या अटैच कर दिया, पब्लिक IP। यानी इंटरनेट चलाने के लिए मुझे पब्लिक IP चाहिए, तो डिपेंडेंसी बन गई। एवरीवन यस और नो? यस सर। गाइस सो यानी कि अगर मेरे को इस मशीन पे और इस मशीन पे सब पे अगर इंटरनेट चलाना है तो पब्लिक IP देना पड़ेगा, तो फिर ये पेयरिंग वगैरह की जरूरत है। सिंपल सा गाइस, अगर आपको अपने नेटवर्क यानी कि आपके घरों में जो सिस्टम लगा हुआ है तो आपके सिस्टम से एक सिंगल ही IP रहता है जो कि होता है प्राइवेट IP। बट आपके घर में जो मॉडेम लगा हुआ है, मॉडेम में आपका क्या है, पब्लिक IP कॉन्फ़िगर्ड होता है। जो मॉडेम आपके यहाँ पे लगा हुआ है उसके अंदर क्या कॉन्फ़िगर्ड है, पब्लिक IP कॉन्फ़िगर्ड। तो अगर आपका पब्लिक IP वहां पे कॉन्फ़िगर्ड है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, आपने मॉडेम पे नेट कॉन्फ़िगर हो रखा है। तो अगर मैं यहाँ पर एक गेटवे लगा देता हूं नेट, और मैं नेट गेटवे को जिस भी रूट टेबल के अंदर अटैच करूंगा, नाउ आई एम यूजिंग अ नेट गेटवे, मैं इस नेट गेटवे को जिस भी रूट टेबल के साथ अटैच करूंगा वो रूट टेबल पर इंटरनेट चलना स्टार्ट हो जाए वाया प्राइवेट IP पर। तो नो नीड फॉर पब्लिक IP। लाइक कि मैंने यहाँ पे एक नेट गेटवे बनाया, नेट गेटवे को वन साइडेड अटैच विद इंटरनेट गेटवे, यानी कि मैं उस सबनेट से कनेक्ट करूंगा जो सबनेट मेरे इंटरनेट गेटवे से कनेक्टेड है। ये सबनेट इंटरनेट गेटवे है। सो नाउ एक पब्लिक IP मुझे नेट गेटवे को देना पड़ेगा, और आफ्टर दैट आई एम अटैच द नेट गेटवे टू द लैन सर्वर। सो आई एम जस्ट गो टू माय VPC। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूं, आई एम जस्ट गो टू द रूट टेबल, create root table, and now I'm just create a WAN root table, WAN -RT -VPC1, and now select the VPC1,
एंड क्रिएट, मैंने रूट टेबल क्रिएट करी, देन आई एम ऐड अ सबनेट, edit subnet association and now add a 6 and guys मैंने क्या करा है इस रूट टेबल के अंदर जो मैंने VPC WAN VPC का ये सबनेट VPC1 वाला सबनेट क्या करा दिया यहाँ पर एड ऑन करा दिया VPC1 की जो मेरी WAN रूट टेबल्स है सबनेट एसोसिएशन और एडिट सबनेट एसोसिएशन। तो गाइस यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब एक ही सबनेट है तो एक सबनेट एक ही रूट टेबल में हो सकता है। Got it? So यानी कि HR subnet work in WAN और sales work in LAN. Now I'm just create a root table. अब मैं root table sorry net gateway create कर रहा हूँ. So how to create a net gateway? Is it simply you can see the option the net gateway. Click on net gateway, create net gateway. Give the net gateway name is like a VPC1-LAN-net. Select a subnet. So guys, when you create a net gateway, always आपका जो है public subnet के साथ connect होना चाहिए. So now the VPC1 का HR जो है वो मेरा public subnet है. इस पर इंटरनेट चल रहा है ना. The public IP is attached. Now I'm select a VPC1. As well as कि आपको एक पब्लिक आईपी भी चाहिएगा, यानी कि अगर आपके जितनी भी मशीन आप लैंड नेटवर्क पे सबका कॉमन ही पब्लिक आईपी हो, यानी कि आप अपने घर में अगर आपने वाईफाई से आपने 4 लैपटॉप कनेक्ट कर रखे हैं और आप चारों के चारों लैपटॉप पे जाके डालोगे माई आईपी तो वो आपको कॉमन ही आईपी दिखाएगा, बट आपका प्राइवेट आईपी क्या होगा डिफरेंस होगा। सो नाउ यहाँ पर मैंने सिलेक्ट करा देयर इज नो एनी पब्लिक आईपी एलोकेट इलास्टिक आईपी। रिमेंबर गाइस जब भी आप आईपी एलोकेट करेंगे चार्जेस एप्लीकेबल होंगे, तो नेट गेटवे डिलीट करना है और फिर आईपी भी आपको डिलीट करना है। तो यहाँ पर मैंने आईपी जनरेट करा है एंड क्रिएट नेट गेट। तो रिमेंबर कि जो आपका आईपी है वो इलास्टिक आईपी के अंदर आपको दिखेगा। इलास्टिक आईपी का मतलब है स्टैटिक आईपी। तो जो मैंने अभी नेट गेटवे के लिए आईपी दिया है वो ये आईपी है, ये पब्लिक है, दिस इज द पब्लिक है। द रेंज 10, रेंज 192 और रेंज 172 इन तीन के अलावा जो भी रेंज है वो सब पब्लिक आईपी है, वो सब पेडेबल। नाउ गाइस 3.109.120.109 इज अवेलेबल। नाउ कि अब मेरे को क्या करना है, नेट गेटवे बना दिया लेकिन मुझे लैन के साथ अब कोई गेटवे तो नहीं है, तो नाउ अटैच दिस गेटवे विद लैन। तो नाउ आई जस्ट गो टू रूट टेबल। अभी ये मेरा डिप्लॉय नहीं हुआ है, sorry the public IP, I'm just click on net gateway. Is it still in pending? Or now I'm just go to the root table and select WAN RT VPC1. Okay, ये LAN ही बनानी थी, मैंने WAN नाम दे दिया। Got it? So now I'm just click on this, select and root, edit root. So 10 और देखिए there are no any gateways available. Now add 000 और मैं इसके साथ कौन सा गेटवे अटैच कर रहा हूँ, इंटरनेट गेटवे, यानी कि वी डोंट रिक्वायर फॉर द पब्लिक आईपी। नेट गेटवे का अनदर बेनिफिट क्या है कि गाइस आपकी मशीन को कोई आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकता, वन वे कम्युनिकेशन, आपका नेटवर्क को कोई एक्सेस नहीं कर सकता, बट आप किसी भी नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इंटरनेट एक्सेस दे दिया। So when you provide a internet access in a LAN network, attach net gateway. अगर आपको LAN के अंदर इंटरनेट चलाना है तो आपको कौन सा गेटवे यूज करना पड़ेगा, the net gateway. That's why I'm create a net gateway and attach with a LAN subnet. Now just click on this machine, net gateway, और चेक कर लेते हैं guys, it's in active state. Now I'm go to the peering. मैं पहले यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि चार्जेबल सर्विसेज है। तो पेयरिंग कनेक्शन को गाइस पहले आपको पेयरिंग कनेक्शन डिलीट करना पड़ेगा। अगर VPC आपको डिलीट करना है, डिलीट रिलेटेड टू रूट, सबसे पहले आपको पेयरिंग कनेक्शन डिलीट करना पड़ेगा। सेकेंडली जो भी वर्चुअल मशीन इस सबनेट के साथ अटैच्ड है, तो यू नो कि एक वर्चुअल मशीन सिंगापुर नाम से मैंने बनाई थी, इट्स ऑल्सो वर्किंग, so I'm delete terminate this machine also.
तो जो भी चीज आपकी VPC के साथ कनेक्टेड है तभी आपका डिलीट होगा। नाउ यू कैन चेक कि आपका इंटरनेट भी यहाँ पे चलना स्टार्ट हो गया। तो दिस इज a 10.0.75 what happened? तो अभी नहीं चला, जस्ट अ मिनट गाइस। 10.0.75 I'm just go to NAT gateway. The NAT gateway is in active mode and public IP is over 10. Okay. 10.0.51. Fine. This is the NAT gateway. Public and private IP is available. After that, I'm just go to the root table and root table में आने के बाद LAN root table. गाइस मैं चेक कर लेता हूँ इसमें कौन सा सबनेट है। Six. Got it? VPC1 6. 10.0.64. Then go to the root tables. LAN-RT VPC1 roots, edit roots 000 and now I'm select on net gateway select करा था ना guys? इंटरनेट गेटवे ले लिया था, नेट गेट बताया क्यों नहीं? तभी मैं कह रहा है नेट चला क्यों? क्योंकि इंटरनेट गेटवे भी अटैच करोगे तो भी नहीं चलेगा क्योंकि पब्लिक आईपी तो उस मशीन पे है ही नहीं। Now I'm attached the net gateway. Now you can see window R and ping to Google. So now reply is coming and now add. Okay, fine guys, got it the point. और देखिए अगर मैं यहाँ से नेट गेटवे रिमूव कर देता हूँ तो आपका इंटरनेट भी चलना बंद हो जाएगा। रूट टेबल्स LAN1-RT रूट्स एडिट रूट्स, और अगर मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो भी आपका क्या होगा? इंटरनेट चलना वहां पर बंद, वर्चुअल मशीन। तो गाइस कभी भी रिमेंबर कि क्लाउड पे आपको पब्लिक आईपी हर मशीन को नहीं देते। तो पब्लिक आईपी की कॉस्ट होती है, हमारा मंथली रेंट होता है 1000 रुपए 2000 रुपए पर मंथ। तो अब देखिए अगर आपने 100 सर्वर बनाए तो क्या आप 2 से 3 लाख रुपए पब्लिक आईपी की कॉस्ट दोगे? अगर मैं कहता हूँ एक मशीन का पब्लिक आईपी की कॉस्ट 1000 रुपीज भी जा रही है, ठीक है? तो आप बताइए अगर किसी कंपनी ने 50 सर्वर बना रखे तो 50,000 वो सिर्फ आईपी के लिए पे करेगा। इट्स अ टफ और नॉट एवरीवन? Guys, now how to delete net gateway? Select net gateway and delete. और जब तक net gateway आपका delete नहीं होगा, जब तक आपका public IP भी क्या होगा? delete नहीं होगा। Now यहाँ से सारी चीज मैंने delete कर ही दी थी, तो पेयरिंग कनेक्शन वगैरह। तो VPC भी आपको delete करना है, तो सेम प्रोसेस है VPC delete करने का। VPC3 action and then go to delete. अभी आपको कोई एरर नहीं देगा क्योंकि मैंने इसके साथ अटैच सारी की सारी रिसोर्स को क्या कर दिया था? रिमूव कर दिया था, इसलिए सिंगापुर लोकेशन से डिलीट हो जाएगा। बट अगर आप देखिए यहाँ से डिलीट करने की कोशिश करेंगे ना तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी मशीनें अटैच्ड है। बट दूसरा पेयरिंग कनेक्शन भी बना हुआ है क्योंकि मैंने एक ही पेयरिंग डिलीट करी थी, VPC1 टू VPC2, बट VPC1 और 2 की पेयरिंग तो इनेबल है ना अभी भी। तो पेयरिंग कनेक्शन कभी भी डायरेक्टली क्या होता है? आपका डिलीट नहीं होता है। तो आपको यहाँ से भी पेयरिंग कनेक्शन डिलीट करना पड़ेगा। फर्स्ट डिलीट पेयरिंग कनेक्शन, एंड देन मशीन भी आपको सारी डिलीट करनी पड़ेंगी, तभी आपके VPC डिलीट होंगे। तो नाउ सिलेक्ट ऑल VPC मशीन एंड इंस्टेंस टर्मिनेट। तो सारी मशीन मैंने यहाँ से टर्मिनेट कर दी। टर्मिनेट करते मेरा सेशन ब्रेक हो गया।
और उसी के बाद ही आपकी क्या होंगी, सारी की सारी चीजें डिलीट होंगी। तो नेट गेटवे मैंने डिलीट कर दिया गाइस, बट यू कैन सी कि इलास्टिक आईपी आपका कभी भी ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होता है, और अगर ये यहाँ पे पड़ा रहेगा तो आपका बिल बनाएगा। नाउ यू कैन सिलेक्ट दिस एक्शन और रिलीज, आपको रिलीज करना है और एसोसिएट करना चाहते हो। अगर आप किसी मशीन के साथ अटैच करना चाहते हो, लाइक कि आपकी मैंने किसी मशीन को पब्लिक आईपी नहीं दिया, तो आप एक इलास्टिक आईपी जनरेट करिए और उसको इंस्टेंस के साथ अटैच कर दीजिए। तो नाउ रिलीज, वन ऑफ वन आईपी ऑलवेज यूनिक, कल ही बताया मैंने कि ऑलवेज हर मशीन यूनिक आईपी यूज करती है। तो हमने क्या करा, हमने डिवाइस पर यूनिक आईपी एक पब्लिक दिया, उसके बाद नेट, तो नेटवर्क का काम क्या है, नेट का नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, कि गेट नंबर 1 से हजारों आदमी जा सकते हैं, हर आदमी को अलग अलग गेट नहीं दे सकते। तो जो गेट है वो भी क्या हमारे नेट की तरह ही काम कर रहा है ना। तो लाइक आप 5 कैंडिडेट्स को जाना है तो सबके साथ आप सभी की आईडी अलग होंगी, बट सबका आइडेंटिटी गेट नंबर 1 ही होगा, एग्जिट पॉइंट सबके पास गेट नंबर 1 है। तो मैंने क्या कहा कि अगर आपको इंटरनेट एक्सेस करना है तो दिस इज योर आईपी और आपको पर्टिकुलर इस गेट से एग्जिट होना है। आइडेंटिफिकेशन अलग अलग है, बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन अलग अलग है। नाउ क्लिक ऑन VPCs एंड 2 VPCs हैं गाइस, VPC 1 को सिलेक्ट करिए, डिफॉल्ट को डिलीट मत करना, एक्शंस एंड देन डिलीट VPC। तो अभी अंडर प्रोसेस है, मेरा चल रहा है अभी, VPC के साथ कुछ ना कुछ कनेक्टेड है, तो मैं थोड़ी देर बाद। तो इनफ फॉर टुडे, कंटिन्यू गाइस, थैंक यू।